Good morning, student of class 4th. How are you? I hope you all are well, fit and healthy and enjoying your teaching from home. So student, we have completed chapter number 12. Now, today date is 27/8/2020. We will start a new chapter, our community. So, in this chapter, what are the learning objectives? After studying this chapter, what you will understand? First thing is that you are able to understand what a community is. Community किसे बोलते हैं, ठीक है? Different community services or the various community agencies, ठीक है? This thing we have to study in this chapter. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूं डेफिनेशन एंड आफ्टर दैट आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग यू. Community means a group a group of people living together in a particular place, in a particular area is called a community. ठीक. See, what is community? A group of people living in a particular area is called a community. ठीक है. So and after that it is given that you have learned in the previous class how two friends help live together in a community and help each other. Okay, so let thing is same, the word is new for that. वहां आपने क्या पढ़ा था? नेबरहुड. And here the name of the chapter is our community. See, so student, first of all understand what a group of people living together in a particular area is called a community. So firstly I explain you the meaning of three words, then very easily you are able to understand what is community. Neighbors. Firstly I explain you neighbors. So student, you are living in a house. आप बेटा कहाँ रहते हो? You are living in the house. In the same manner, you are living in a house with other members of a family. फैमिली में आप ही नहीं हो, और भी दूसरे मेंबर्स भी है ना फैमिली में बेटा. सो यू आर लिविंग इन अ हाउस with other members of a family. In the same manner, other peoples are also living in the house with other members of the family. So what is the relation between that members with you? ठीक है, मान लो this is your house. For example, this is your house. Maybe many houses near your house. There is one more house. Okay.
So see student, for example child, this is your house and you are living with other family members. In the same manner there are many houses around your houses. इसी तरह बहुत से हाउसेज हैं आपके हाउसेज के नियर में, और इन दिस हाउसेज आल्सो डिफरेंट फैमिलीज आर लिविंग. सो व्हाट आर दे? द पर्सन हु आर लिविंग इन, ये आपकी फैमिली है. इन द सेम मैनर देयर आर मेनी हाउसेज नियर योर हाउस एंड डिफरेंट फैमिलीज आर लिविंग इन दिस हाउसेज. सो व्हाट आर दे? दे आर योर नेबर्स. आगे ही बात समझ में आपके. नेबर्स क्या होता है बेटा? जैसे आप जहां रह रहे हो आपके अगल बगल बहुत से हाउसेज हैं, उनमें भी फैमिलीज रह रही हैं. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट families? That houses, these houses are very close to your house, so the families living in these houses are your neighbors. और हिंदी में आप कह सकते हो वो आपके क्या है? पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं. इज इट क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इज नेबरहुड. Next is, what is neighborhood? So neighborhood is what that, for example, this is their house. ये आपका हाउस है, ठीक है. आपके हाउस के बगल में मान लीजिए दिस इज अ पार्क, ठीक है. ठीक, पार्क हो गया, सुपर मार्केट. इज इट क्लियर? सो व्हाट इज दिस? दिस इज ए रोड. इज इट क्लियर? टेम्पल आ गया. Just so see student, for example this is your house and these are the things which are present in your neighborhood. तो यही आपकी क्या हो गई? नेबरहुड प्लेसेस है. प्लेस अराउंड योर हाउस, ठीक है. आपके हाउस के अगल बगल की जो जगह होगी वही आपका क्या होगा बेटा? नेबरहुड, ठीक है. यही आपकी नेबरहुड प्लेसेस हैं. ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज देयर हाउस एंड दीज आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द आपके नेबरहुड में. टेम्पल भी है, पार्क भी है, रोड्स हैं, सुपरमार्केट भी है. ये मैंने जस्ट एग्जांपल बनाए हैं. सो व्हाट आर दीज? दीज आर नेबरहुड. ये क्या है? ये जगहें कहाँ? आपके अगल बगल जहां आप रहते हो उस सराउंडिंग्स में ये चीजें. तो ये आपके क्या है? नेबरहुड है, नेबरहुड प्लेसेस हैं. इज इट क्लियर? अब देखो, इन द सेम मैनर स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल वेयर वी आर लिविंग, जहां हम रहते हैं, ठीक है. हाउ आवर लाइफ इज इजियर एंड कंफर्टेबल. हम जहां भी रहते हैं बेटा, जहां भी हमारा हाउस है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी लाइफ, इजी ढंग से चले और बहुत कंफर्टेबल लाइफ रहे. तो हाउ दिस इज पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल ड्यू टू फैसिलिटीज
विच आर प्रेजेंट इन दैट एरिया। जो आपका, जैसे आप यहाँ रह रहे हो तो आपकी लाइफ इजी और कंफर्टेबल तभी हो सकती है कि जिस एरिया में आपका हाउस है वहां क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या सुविधा आपको मिल रही है, क्या फैसिलिटीज मिल रही है, व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल इन योर नेबरहुड। इज इट क्लियर? और उसी को हम लोग कहते हैं नेबरहुड सर्विसेज। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेबरहुड सर्विसेज। फर्स्टली मैंने आप लोग को नेबर्स बताया, वेयर योर हाउस टू क्लोज योर हाउस देयर आर मेनी हाउसेस, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड दैट फैमिली मेंबर्स हु आर लिविंग इन दैट हाउसेस, सो दैट आर योर नेबर्स। वो आपके क्या थे? नेबर्स थे। अब जहां आपका हाउस है इसके बगल में एक पार्क भी है, टेम्पल भी है, सुपरमार्केट है, रोड है, तो ये क्या आपकी नेबरहुड प्लेसेस है, जहां आप रह रहे हो आपकी सराउंडिंग्स में ये सब प्लेसेस हैं। अनदर थिंग इज हाउ योर लाइफ बिकम गुड कंफर्टेबल सब कुछ, तो उसके लिए क्या होगा? आपको क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, और ये फैसिलिटीज जो होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेबरहुड सर्विसेज। इन्हीं फैसिलिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? नेबरहुड सर्विसेज। ठीक है, जैसे ये आपका घर है, आपके घर के बगल में टेम्पल भी है, ठीक है, इधर और भी बहुत से घर होंगे, इस एरिया में पार्क है, पार्क में किसी भी एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं। ठीक है, पार्क ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ बच्चों के लिए होता है, कोई भी एज ग्रुप के लोग पार्क में जा सकते हैं। सुपरमार्केट है, आप यहां से जाके सामान खरीद सकते हो, डेली यूज की थिंग्स खरीद सकते हो। ठीक है, फिर आपके बगल में और क्या होना चाहिए? हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि बेटा कभी भी कोई भी बीमार हो सकता है। ठीक है, एंड हॉस्पिटल इज द प्लेस वेयर वी फाइंड द डॉक्टर। डॉक्टर हमें कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल में मिलते हैं। ठीक है, एंड डॉक्टर गिव अस द मेडिसिन। डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, ये सब कहाँ आपको मिलेंगे? हॉस्पिटल्स में मिलेंगे। ठीक है, बाई चांस लॉ और रूल अच्छा हो, जिस एरिया में आप रहते हो बदमाशी ना हो, वहां चोरी ये सब ना हो, तो इसके लिए आप किस नेबरहुड सर्विसेज पे डिपेंड रहेंगे? आपके एरिया में क्या होना चाहिए? पुलिस स्टेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पुलिस स्टेशन होना चाहिए। इज इट क्लियर? आ रही है बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल टू कीप योर मनी सेफ, तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे? बैंक जाओगे। इज इट क्लियर? बैंक में आप अपनी मनी भी सेफ रख सकते हो, इवन यू कैप्ट योर प्रीशियस थिंग्स इन द बैंक आल्सो। प्रीशियस थिंग्स में क्या आ जाती है बेटा? आपकी ज्वेलरीज आ जाती हैं। आप बैंक में जाके लॉकर ले सकते हो, उसमें अपनी ज्वेलरीज रख सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अनदर हो गया, जैसे मैंने पोस्ट ऑफिस की बात की, तो पोस्ट ऑफिस इफ यू वांट टू सेंड a letter to distance place, then you go to post office also. And for example if you have to go travel a distance places, तो आप जहां रह रहे हो वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कि आप अपने घर से निकले, घर से निकलते ही आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल है, रेलवे फैसिलिटी अवेलेबल है। सो व्हाट आर दीज स्टूडेंट? दीज आर नेबरहुड सर्विसेज which make our life easy and comfortable। यही वो नेबरहुड सर्विसेज हैं जो हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बना देती हैं। ठीक है, आप जहां रहते हो अगर ये सारी चीजें आपके जिस में रहते हो आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल है, तो आपको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, कई बार होता होगा कि कुछ लोगों के घर ऐसी जगह होते हैं कि घर से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर वॉक करके आना पड़ता होगा, देन दे आर एबल टू फाइंड एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। और कुछ लोगों के घर इतने अच्छे जगह पे होते हैं कि सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो नेबरहुड सर्विसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज जितनी बेटर नेबरहुड सर्विसेज होगी उतनी बेटर आपकी लाइफ होगी। जितनी बेटर आपके नेबरहुड प्लेसेस जो आपकी सराउंडिंग्स है उसमें जितनी ज्यादा फैसिलिटीज होंगी आपकी लाइफ उतनी इजी और मोर कंफर्टेबल होगी। आगे समझ में? तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए बेटा आज। मैंने आप लोग को बताया व्हाट आर नेबर्स, व्हाट आर नेबरहुड, नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड प्लेसेस एक्सप्लेन कर दी, और हाउ आवर लाइफ बिकम इजी एंड कंफर्टेबल। हमारी लाइफ इजी और कंफर्टेबल कब हो सकती है? ड्यू टू नेबरहुड सर्विसेज।
नेबरहुड सर्विसेज लाइक पार्क है, हम जहाँ रहते हैं, टेम्पल है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है, सुपर मार्केट है, गुड क्लीन गुड रोड्स हैं, so good transport facilities in your area where you are living. All these things make your life very easy and comfortable. ठीक है, so the same thing which we have to, इसीलिए आफ्टर गिविंग द डेफिनेशन ऑफ ए कम्युनिटी, बुक ने इस बात को इंट्रोड्यूस किया था कि आप ऑलरेडी क्लास 3 में, प्रीवियस क्लास में कम्युनिटी के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, कैसे लोग कम्युनिटी में, उसमें आपने वहां ये भी पढ़ा था, वी शुड हेल्प ईच अदर, वी शुड हेल्प ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल वेयर यू आर लिविंग, डेफिनेटली हमारा नेचर काइंड होना चाहिए, वी शुड हेल्प अदर पीपल्स। बाई चांस हमें भी कभी हेल्प की जरूरत पड़ गई तो वो भी तो हमारी हेल्प करेंगे। सो व्हाट टाइप ऑफ हेल्प यू कैन डू इन योर नेबरहुड, दीज आल्सो वी हैव डिस्कस इन क्लास 3। सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज द रीजन व्हाट इज कम्युनिटी, अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया, किसी एक एरिया में रहने वाले लोगों को ये क्या बोलते हैं, इसका डे कम्युनिटी होती है। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिटी बोलते हैं। अब देखो, अब इससे थोड़ा सा अब चलते हैं, कम्युनिटी क्या, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज वाइज आपको अलग अलग कम्युनिटी देखने के लिए मिलती है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिटीज एंड टाउन्स एरिया ऑफ मेट्रो सिटीज, अर्बन एरिया, मतलब शहर वाले एरियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहां अलग है। ठीक है, क्योंकि शहर एरिया है, सिटीज एरिया, वहां फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा होती हैं, ये तो आपको भी पता है। ठीक है, विलेजेस एरिया जिसको हम लोग रूरल एरियाज में बोलते हैं, सो इन दैट एरिया आल्सो फैसिलिटीज आर अवेलेबल। लेकिन आप अर्बन एरियाज की, शहरी एरिया की बात करो तो वहां बहुत ज्यादा सुविधाएं होती हैं, बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। इज इट क्लियर? सो जो आप जहां रहते हो तो आपको जो ये सर्विसेज है ये कौन प्रोवाइड करती है, कुछ some of the services are provided by the government also and some of the services are provided by the private agencies also। ठीक है, and for everything we are paying the money, और सारी चीजों के लिए हम लोग मनी भी पेड कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, a group of people living together in a particular area is called community। अब इसका मीनिंग आई होप सबको समझ में आ गया होगा। एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी कि व्हाट आर नेबर्स और व्हाट इज नेबरहुड प्लेसेस और व्हाट आर नेबरहुड सर्विसेज विच मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। इसलिए मैंने ये पूरा टॉपिक वाइज आपको बता दिया। ठीक है, नाउ सी स्टूडेंट, यू पीपल हु लिव टुगेदर इन अ कम्युनिटी लिव इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेट अप बाय देयर कम्युनिटी। ठीक है, जहां भी हम रहते हैं बेटा, जिस एरिया में रहते हैं तो हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं। ठीक है, हम हमेशा बात करते हैं क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए। क्यों, एवरीवन क्लीन देयर हाउसेस, हम सब अपने हाउसेस क्लीन रखते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू गो आउटसाइड द हाउस आल्सो, तो हम उसी सराउंडिंग से होके जाएंगे। इफ आवर सराउंडिंग्स आर नॉट नीट एंड क्लीन देन डेफिनेटली हम फिट और हेल्दी नहीं रहेंगे। सो दैट इज द रीजन, जहां एक कम्युनिटी कुछ लोग मिलके जहां रहते हैं तो हम लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। ठीक है, जिसको सारे लोग फॉलो करते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं तो स्कूल की बात कर लो। ठीक है, आप घर में फ्रीली कैसे भी रहते हो, लेकिन द डे व्हेन यू हैव टू कम टू स्कूल, आप सब कुछ अपना बैग में सारी बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, स्कूल में आना है तो प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है, वो भी डे वाइज भी यूनिफॉर्म है। एंड देयर आर मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन विच वी हैव टू फॉलो। घर में हो आप, मम्मी भूख लगी, मम्मी आई वांट टू ईट सिम, प्लीज गिव मी, यू रिक्वेस्ट ए मदर और शी गिव यू। लेकिन इफ यू आर इन द स्कूल, आपको फर्स्ट पता है कि फर्स्ट 4 पीरियड पढ़ाई होगी, आफ्टर दैट इज ए इंटरवल एंड देन अगेन 5 6 7 8 पीरियड इज ए कंटिन्यूअस टीचिंग। ठीक है, सो what I am saying that in the school, even when you are coming to the school, you are following lot of rules and regulation। तो बहुत से रूल और रेगुलेशंस को बेटा फॉलो कर रहे हो ना, आप भले इतने छोटे हो,
बहुत छोटे हो, अभी आप लोग की एज क्या होगी, इतने छोटे एज है फिर भी आप इस बात को समझते हो कि हमें स्कूल में जाना है तो स्कूल्स के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है। आप जैसे स्कूल आते हो, यू केप्ट योर बैग इन द क्लास एंड व्हेन द बेल रिंग you after the attendance you come out of the class for assembly. Is it clear? So बहुत सी चीजें हैं जहां हम जाते हैं तो हम रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, हम सब करते हैं. That is the same for all. In the same manner where the peoples are living, they also make some rules and regulation in their society और in the community. ठीक है, जिस एरिया में रह रहे हो तो वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन करते हैं और वी ऑल फॉलो दिस, हम उस रूल रेगुलेशन को हम सब फॉलो करते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन एज ए फॉर मेकिंग अ गुड फैमिली हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं. इफ यू हैव योर एल्डर ब्रदर और सिस्टर एंड यू आर स्टडिंग इन 3 or 4 5 classes, if you don't understand anything you can ask your elder brother or sister, maybe they help you many time in the studies also. ठीक है, मम्मी आपकी सब कुछ केयर करने का काम मम्मी करती हैं, तो मे बी सम टाइम इफ योर मदर से यू एनीथिंग यू हेल्प हर, आप छोटी मोटी हेल्प मम्मी की कर देते हो. इन दिस मैनर इन द फैमिली वी आर बाउंड टुगेदर, यूनाइट टुगेदर, हम सब कुछ ना कुछ छोटा बड़ा काम कर देते हैं, इसलिए हमारी फैमिली हैप्पी रहती है. ठीक है, इन द सेम मैनर अब बहुत सी फैमिलीज रह रही हैं, ये तो आपके अपने घर की बात हुई, जैसे हम अपने घर में हेल्प करते हैं एक दूसरे की, सेम थिंग इफ वी फॉलो आउटसाइड आवर हाउस आल्सो विद द अदर मेंबर्स हु आर लिविंग इन दैट एरिया. सो लाइफ इज वेरी गुड, लाइफ इज वेरी गुड. तो हमें क्या आपस में एक दूसरे की क्या करनी चाहिए बेटा, हेल्प करनी चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, जैसा क्लास 3 में आपने पढ़ा भी था. ठीक है, कि आप नेबर्स में रह रहे हो तो आप एक दूसरे की हेल्प करो. अगर बाई चांस आपके नेबरहुड में ऐसी फैमिली है, बहुत एल्डरली पर्सन है, मतलब एक काफी एज वाला पर्सन है, वो अलोन रह रहा है, नो वन इज इन हिज फैमिली टू लुक हिम, उसकी फैमिली में कोई नहीं है उसको देखने वाला, तो ऐसे में वो आपका नेबरहुड में रह रहा है, आपका नेबर है, आप रह रहा है आपके कम्युनिटी में, he is living in the same area where you are living, तो आप लोग, I am not saying only you go and help him, if all the community member हम सब थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे तो हम उसकी हेल्प कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाय ब्रिंगिंग द मेडिसिन और बाय टेकिंग हिम टू द डॉक्टर और बाय कुकिंग फूड फॉर हिम, क्योंकि बेटा हर ओल्ड एज ऐसी होती है कि बॉडी पार्ट्स बिकम वीक. ठीक है, अब बॉडी पार्ट्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, सो एट दैट टाइम वी नीड हेल्प ऑफ अदर्स. ठीक है, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, छोटे बच्चे उनको हम लोग पकड़ना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, सेम ऐसा होता जाता है जब हमारी एज बहुत ज्यादा होती है. वी हैव नॉलेज ऑल थिंग्स, बट होता क्या है कि जो हमारी बॉडी जो आज स्ट्रॉन्ग है, इट ड्यू टू एज इट बिकम वेरी वीक. ठीक है, आपने मॉर्निंग में भी देखा होगा कि छोटे बच्चे या पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को मॉर्निंग वॉक कराते हैं, देखा है ना. तो ये एज ऐसी होती है जब हमारे बॉडी पार्ट्स बहुत ही वीक हो जाते हैं एंड एट दैट टाइम वी नीड अ सपोर्ट ऑफ अदर. ठीक है, सो इफ सच टाइप ऑफ पर्सन इन योर नेबरहुड यू कैन हेल्प हिम बाय गिविंग हिम मेडिसिन, ब्रिंगिंग फूड फॉर हिम, मेकिंग द फूड फॉर हिम. ओके, तो डॉक्टर्स को भी बुला सकते हो, तो इस तरह आप थोड़ी थोड़ी हेल्प करोगे, तो दैट इज द रीजन वेयर वी आर लिविंग. फॉर एग्जाम्पल आप जिस एरिया में रह रहे हो तो हमारा नेचर क्या होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होना चाहिए. एंड एवरी कम्युनिटी हैज देयर ओन रूल रेगुलेशन दैट वी शुड फॉलो, दैट हमें उसे फॉलो करना चाहिए. ठीक है, यहां तक आ गया सबके समझ में. अब देखो बेटा, पीपल हु लिव टुगेदर इन ए कम्युनिटी लिव इन एन ऑर्गेनाइज मैनर फॉलोइंग द रूल एंड रेगुलेशन. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. आप इतनी छोटी एज में 4-5 में पढ़ रहे हो फिर भी पूरे रूल रेगुलेशंस फॉलो करते हो व्हेन यू कम टू द स्कूल. ओके, सो इन द सेम मैनर वेयर इन विच एरिया वी आर लिविंग वी शुड फॉलो दैट. ठीक है, जैसे होता है ना जहां हम लोग रह रहे हैं,
तो कोई एक ऐसा एरिया होता है जहां सब लोग अपने घर का गार्बेज, कूड़ा करकट फेंकते हैं। ऐसे नहीं सबका घर है, मेरा मन किया मैंने फेंक दिया, उसका मन किया उसने फेंक दिया, दिस इज नॉट राइट, ये राइट नहीं ना। तो इसीलिए बोला है कि रूल रेगुलेशन से चला जाता है, ठीक है। जहां हम लोग रह रहे हैं आपस में हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई गार्बेज, कूड़ा तो ऐसी चीज है हर किसी के घर से निकलेगा, डेली आप घर को क्लीन करते हो तो कूड़ा निकलना ही निकलना है। तो वी कांट थ्रो गार्बेज इन द ओपन सराउंडिंग्स। अगर ओपन सराउंडिंग्स में आप गार्बेज फेंकते हो देन लॉट ऑफ जर्म्स आर इन योर सराउंडिंग, बहुत सी डिजीज फैलेगी एंड इवन you have to go many times from the same places, so what happens, you also suffer from different types of diseases, ठीक है। so we where we are living we should follow rules and regulations। हम जहां भी रह रहे हैं हमें रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, सर they cooperate with each other and share their work and duties the way they do with their family members at home, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल इन द एरिया वेयर यू आर लिविंग, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ए सिंगल पर्सन टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ दैट एरिया। तो लोग आपस में सोसाइटीज बनाते हैं, मेंबर्स चुनते हैं, ये थोड़ा हाई पे होगा, चलो फिर भी बता, मेंबर्स चुनते हैं, ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पज। कि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो यू विल सी दैट, टेम्पल रिलेटेड प्रॉब्लम है यू विल सी दैट, if there is a problem related to the garbage then you will see that, if the problem is related with the clean drinking water so this committee will look for that। इस तरह आपस में सब एक दूसरे में वर्क, क्या है, सबको कुछ ना कुछ ड्यूटीज मिली है एंड वी ऑल डू आवर ड्यूटीज। जैसे हम घर में एक दूसरे की हेल्प करते हैं so that our family is happy, in the same manner where we are living and if you are, we should help each other and if you are getting some responsibilities you must do that। अगर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है तो डेफिनेटली आपको वो फॉलो करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ड्यूटीज जो भी मिलती है आपको। जैसे आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है, जैसे टीचर बाहर जाता है आप पेन पेपर लेके सामने आ जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपकी ड्यूटी है। The class is shouting, if the sir or ma'am will come he will ask tell me the name of the student who are talking। तो आपके पास पहले से लिखा होगा, बाई चांस आप लिखना भूल गए तो आपको लगेगा सारी गलती आपकी है, होता है ना ऐसा कभी कभी। सो दैट इज द थिंग। फिर नेक्स्ट है बेटा, जो मैंने आप लोग को बताया, कम्युनिटीज अलग अलग जगह अलग अलग आपको देखने के मिलती है, जैसे विलेजेस है, टाउन्स हैं, सिटीज हैं। सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड सर्विसेज टू द पीपल हु लिव टुगेदर, ठीक है। अब सो मेनी पीपल्स आर लिविंग टुगेदर, सो वी there are many societies which are providing us the facilities, ठीक है। अब बहुत सी सोसाइटीज हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही हैं, सो दैट वी कैन लिव अ सेफ एंड हेल्दी लाइफ, जिससे कि हम लोग सेफ और हेल्दी लाइफ जी सकें, ठीक है। दैट थिंग वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर एंड सम कम्युनिटी सर्विस। वहां क्या था, नेबरहुड सर्विसेज थी। The thing is that now here the word is community service. What are the community service in which we need into our day-to-day life, that we also discuss here, and we also discuss what are the names of the agencies who provide these facilities to us। Okay, so student, today topic our community, what is the meaning of the neighbors, what is neighborhood places, next is what are the neighborhood services and why we make rule and regulation where we are living, that points we have discussed in today video। Thank you student।